Assalamu alaikum everyone, most welcome. So I'd just like to keep today's session interactive, so you can just drop in maybe just a line or two about yourself if you're a professional teacher or somebody who's doing this tutoring part-time. Just let us know about yourself. With that, I'd like to start our program today. And as usual, we'll start with the same slide that, our purpose is to develop a community of lifelong learners, people who like to upskill, learn new things, and evolve with the passage of time. So today we're going to talk about teaching mathematics specifically and how can we earn better by teaching better. So here's the challenge. If there are two or more teachers who are teaching the same topic and the same subject, what do you think makes one of them more successful than the others? You can unmute yourself and अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, most welcome. क्या हाल है? जी मैं ये सवाल बड़ा आपने अच्छा सवाल लिखा है कि अगर एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर हैं तो एक ज़्यादा सक्सेसफुल है और एक नहीं है या स्ट्रगल कर रहा है, तो मुझे लगता है उसके सक्सेसफुल होने का वन ऑफ द रीज़न ये है कि वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके डिलीवर करता है या वो उस चीज़ को पिक करता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको सिंप्लीफाई करना आता है। यानी टीचिंग स्किल उनकी बेहतर है, that's what you're saying. जी अच्छा, ठीक है. Any other opinions out there? You can unmute yourself and comment. And we have all been students at one point or the other. कोई टीचर्स हमें भी अच्छे लगते थे और कोई बहुत अच्छे नहीं लगते थे. So what do you think is the catch? So Binish has background in mathematics, statistics, economics. Wow. अच्छा जी, सो पहले लेट्स टॉक अबाउट स्किल, जिसका आसिया ने बोला कि अच्छा उनके ख्याल के अंदर स्किल शायद मैटर करती है. तो स्किल को थोड़ा सा अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो स्किल का मतलब मुझे क्या समझ में आया, skill is about the time that somebody takes to explain a concept. So एक टीचर है वो अगर 3 मिनट में एक कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्सेस समवन हु टेक्स 15 मिनट्स टू कम्युनिकेट दैट सेम कॉन्सेप्ट, तो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कैसा होगा. देन द सेकंड थिंग इज अबाउट करेक्टनेस ऑफ द एक्सप्लेनेशन. समटाइम्स हम एक्सप्लेन तो करते हैं लेकिन बहुत प्रिसाइसली एक्सप्लेन नहीं कर पाते. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे हमारा रीजनिंग जो है दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट. दिस सेशन इज फोकस्ड ऑन टीचिंग मैथ्स. तो मैथ्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो जो रूल है जिसकी वजह से वी ईदर सॉल्व द प्रॉब्लम दिस वे और दैट वे, वो मैटर करता है. इट्स नॉट लाइक लैंग्वेज में थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी होती है. तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखें, इफ यू थिंक अबाउट द टाइम टेकन टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, तो हाउ कैन अ टीचर इवन असेस कि इफ दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ टॉपिक या दे आर स्पेंडिंग टू लेस टाइम, स्टूडेंट ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा. ठीक है ना. सो द राइट बैलेंस हैज टू बी देयर. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स करंट लेवल. इज द स्टूडेंट रियली रेडी फॉर दिस टॉपिक? Bazukat, if the student is not ready, then you're going on and on and on. That really means that the student is not really understanding and they're thinking, okay, I will watch the recording later on and try to see what was said. And then the second thing is, how are you explaining the examples that you are using? Are you giving them real world examples that they can visualize? So that matters a lot. So essentially, one way to achieve this timing challenge is that you can go to khanacademy.org. They have free mathematics content. There are videos out there which are sorted grade wise. They have practice sheets. You can spend a few minutes to actually watch that video on the topic that you're going to teach. Watch it and then pick up the content that you think you can use, that you think is relevant to your lesson, and then use it in a similar way. So we have seen over and over again that the content on Khan Academy is actually high quality content 90% of the time. वो examples relevant होती हैं, especially for a subject like maths. दूसरी example is जी एक
छोटी सी बात रिलेटेड टू मैथ्स मैंने एक्सपीरियंस की जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जो मैथ्स है उसको या कोई भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट जिसमें डेरिवेशन या काइंड ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व हैं, उनको कराने का अगर ये एक चीज कंसिडर की जाए कि अगर हम उसका जो बेसिक रूट है उससे वाकिफ करवा दें बच्चे को, तो फिर वो उसके ऊपर ऑल कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्ड होते हैं। तो अगर वो एक चीज हो जाए तो बच्चा उसको कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पूछूं, यहाँ जितने लोग हैं, मैं उनसे पूछूं a+b² किसके बराबर है, तो यहाँ सारे बता देंगे a² + b² + 2ab। लेकिन अगर मैं पूछूं a + b + c किसके बराबर है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर मैं पूछूं a + b + c + d किसके बराबर है, स्क्वायर किसके बराबर है, तो इस पे और ज्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो इसका एक छोटा सा एक बेस मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर मुझे एक मिनट का ऑप्शन दिया जाए, मैं बोर्ड कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बेस, सिर्फ एक बेस जो कि 1 मिनट में एक्सप्लेन होती है, अगर वो 1 मिनट से भी कम में एक्सप्लेन होती है, अगर वो पता चल जाए तो सारे A to Z का स्क्वायर जो है वो मैटर ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बोर्ड का ऑप्शन मिल सकता है मुझे बोर्ड शेयर करने का? लेट मी शेयर इट, जस्ट अ सेकंड। मैं आपको प्रेजेंटर दे सकती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यू वांट मी टू मेक यू द प्रेजेंटर? हाँ, बस 1 मिनट। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड एक्सेस दे दिया, यू कैन एक्चुअली राइट ऑन द सेम स्लाइड आल्सो। हाँ जी, चले मैं इस पे भी लिख सकती हूँ। देखिए आप इसमें लिख लो ना साइड पर या कहीं पर भी। जी श्योर, वी हैव कवर्ड दिस स्लाइड। देखिए आप कहते हैं आप a + b² लिख रहे हैं, तो आपने ये एक ठीक है अच्छा जी, ये देखें ये a + b² हमने करना है। इसका तरीका ये होता है कि आपने लिखा a, यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है ना, a b और ये a। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a² ab एंड यहाँ पे आ जाएगा ab एंड ये मल्टीप्लाई होके b²। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इकट्ठा देखें तो ये a² b² 2ab। लेकिन अगर आप लिखेंगे a b और c, ये तरीका है इसका। और इसी तरह से मैथ्स में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेस करती हैं, जिनका कोई मतलब होता है। हम मैथ्स को सिखाते इस तरह है जैसे ये कोई एक चीज है जिसको आपने सीखना है। ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ a² ab AC एंड AB आप कहेंगे क्या लेके बैठ गई, लेकिन ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगी बात, ये b² और ये यहाँ पर AC सॉरी BC एंड इन अ सिमिलर वे यहाँ पे AC और यहाँ पे ये हो गया BC और यहाँ पे हो गया ये C²। और अब जब आप इसमें से बॉक्स से लिखेंगे तो ये देखें ये एक बेस थी। ये अगर बच्चे को हमने बता दी तो इसमें कितना टाइम लगा, सिर्फ 30 सेकंड लगे। इन 30 सेकंड में ब्रेन ने इसको कैप्चर कर लिया। और ब्रेन का जो वर्किंग है, रूट पे अगर आप काम करते हैं तो ब्रेन कई काम कर सकता है, लेकिन ब्रेन के लिए एक इंफॉर्मेशन ऐसे भेज देना जो कि एज इट इज आपको, आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये ऐसे है और इम्तिहान में ऐसे आती है और पेपर में ऐसे आती है तो आप कर लें, तो ये जरा ग्रिप करना मुश्किल है। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स अ पॉइंट जो कि नेक्स्ट उसके ऊपर आता है। सो टाइमिंग इज वन थिंग दैट टीचर्स हैव टू बी माइंडफुल ऑफ, के उन्होंने अपने आप को असेस करना है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एम आई डूइंग इट एफिशिएंटली। ये आपने एफिशिएंटली किया, आपने विजुअली भी उसको कर दिया टैबुलर फॉर्मेट के अंदर ताकि वो माइंड के अंदर याद रहे, राइट? और आई एम श्योर इसकी जो लॉजिक होगी, अगर कोई वो भी एक्सप्लेन कर देगा तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ठीक होगा एप्लीकेशन लेवल के लिए। लेकिन ना स्क्वायर है ना आयशा, ये स्क्वायर है ना, आप स्क्वायर किसी का भी बनाएंगे, ए बी का मतलब ये है कि आपका स्क्वायर में आना चाहिए। जी जी एग्जैक्टली तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। सो दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो दैट्स एक्चुअली द पावर ऑफ पर्सनलाइजेशन, यानी टाइमिंग आपने कितना स्पेंड किया। हो सकता है एक स्टूडेंट को एक ही बात 10 मिनट में आपको लग जाए समझाने के लिए, somebody else might need just 3 minutes. तो you have to focus on that student. ये बात किसी को ठीक लगती है? यहाँ लोग पर्सनलाइज्ड अटेंशन के लिए आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। You only have one student in a class
इट्स नॉट कि आपने एक एवरेज केस अस्यूम करना है जहाँ पे क्लासरूम में आप लोग स्कूल्स के अंदर पढ़ाते हैं प्रोफेशनली, किसी एकेडमी में पढ़ाते हैं या ग्रुप लेसन्स लेते हैं, वहाँ पे यू आर टीचिंग फॉर द एवरेज लेवल में भी, है ना, एवरेज या अबव एवरेज के लिए। लेकिन जब आप एक्चुअली किसी को पर्सनलाइज्ड लेसन दे रहे हैं तो आपने अपने आप को उसकी पेस के मुताबिक एडजस्ट करना है। तो there is a blog article on our site, हमने TutorBees Academy की फाउंडेशन डाली है। We are putting up actual lesson plans for teachers so that they are able to organize themselves professionally, यानी एक सब्जेक्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। We won't be teaching you actual mathematics, अच्छा भी आपने डेरिवेटिव्स और आपने लीनियर अलजेब्रा कैसे कराना है वो हम नहीं सिखाएंगे, बट द आर्ट ऑफ टीचिंग, the science of teaching, that we will cover. तो this particular lesson on the blog, student centered learning and rapport building, ये आपको personalization सिखाएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स अगर दे रहे हैं और आपने स्टूडेंट से वैसे ही बाय द वे कभी पूछा था कि अच्छा यू नो व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन एनी स्पोर्ट्स, या उसका कोई इंटरेस्ट कार्स के अंदर है या ऑनलाइन गेमिंग के अंदर है, कभी कोई बच्चा मेंशन करता है तो आप एग्जाम्पल्स उससे रिलेट करके दे सकते हैं, राइट। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ keeping or building up that interest in the class. So this is one, for example, this is one question in that blog lesson जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ। So blog की साइट के ऊपर एक एकेडमी का सेक्शन है, उसमें एक लेसन है और उस हर लेसन जो है ना एक्चुअली उसमें इस तरह की आपके पास एंड ऑफ द लेसन क्विज आ रही है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस? यानी अगर आप अपने स्टूडेंट से मिल रहे हैं और आप उनसे पूछते हैं कि हाउ व्हाट वाज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद मैथमेटिक्स, और वो आपको बताता है कि यू नो आई रियली डोंट लाइक इट, बस ठीक है, व्हाई वुड यू आस्क दिस क्वेश्चन? एनी थॉट्स ओवर देयर? क्योंकि मुझे लगता है प्रीवियस नॉलेज जो है वो एक उसका स्टूडेंट का बैकग्राउंड बताती है कि वो एग्जैक्टली नॉलेज पे कहाँ खड़ा है। एग्जैक्टली, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछना चाहिए। Sometimes our teachers don't ask कि अच्छा you know आपके previous grade क्या था या आपकी मतलब you know background क्या है। हो सकता है somebody may be a star student, they are taking this personalized lesson ताकि उनको कोई और जो है वो grade या सर्टिफिकेट चाहिए, किसी और चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो people could be anywhere on that spectrum, है ना। परफॉर्मेंस वो कोई बहुत हाई परफॉर्मर भी हो सकता है जिसने अपना स्टार ग्रेड मेंटेन करना हो, और कोई आपके पास बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम भी लाई कर सकता है, somebody who is struggling to pass। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने लेसन को अप्रोप्रिएटली प्लान कर सकें उसके लिए। सो एक बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग टीचर के अंदर और एक एवरेज टीचर में ये फर्क होता है। एक आउटस्टैंडिंग टीचर अपने आप को स्टूडेंट के लेवल के साथ अलाइन करके चल रहे होते हैं। Then comes the correctness of the explanation. So our advice to teachers is कि the world has changed, there are a lot of free resources out there. हमने बारहा देखा है कि खान अकेडमी की जो videos हैं they are actually very concise. We're asking you कि आप जो भी पढ़ाते हैं occasionally उसको double check किया करें कि अच्छा your explanations and the way you are teaching वो कितनी aligned है in terms of timing and correctness of what you're teaching. The parents who are from outside of Pakistan, they're actually very, very mindful of this. अगर हमारे teachers ये कहते हैं कि ये ऐसे solve करना होता है and they don't explain the underlying rule or the rationale. For example, कि अच्छा if there is an equal to, तो आप दोनों साइडों पे like a seesaw, you have to apply the same operation. दोनों साइडों पे divide कर रहे हैं हम। So that's one रीजन वाई यू से कि जी अच्छा ये मैंने दोनों साइडों के ऊपर ये डिवाइड किया और एक साइड पे कैंसिल होता है एंड यू आर लेफ्ट विद वन, ठीक है। तो दैट एक्सप्लेनेशन एंड दैट अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी डोंट डू इट, इफ वी जस्ट टेल द चाइल्ड कि यू नो डू इट एज आई एम सेइंग, रेस्ट अश्योर्ड वो एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं रहेगा, स्पेशली फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। सो एक तो आप यू नो दिस इज व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर ओन स्किल लेवल। और अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन दैट केस यस डू कवर दोज टिप्स एंड शॉर्टकट्स एंड एक्सप्लेन द चाइल्ड कि अच्छा ग्रेडिंग कैसे होगी, ताकि आप वहां पे भी यू आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट द स्टूडेंट। एज आई सेड पूरा स्पेक्ट्रम है ना, तो अगर स्टूडेंट का पर्पस है कि मैंने एक्चुअली हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करने हैं
यू शुड बी अवेयर कि उन्होंने करने हैं, फिर आप उनको रेलिवेंट टिप्स एंड टेक्निक्स और शॉर्टकट्स बताएं. बट इफ दे वांट टू do well in the subject, they want to focus on the concepts, they want to develop that understanding, एक थोड़ी सी longer running engagement है, तो फिर आप उसको accordingly लेके चलें. ठीक है. और concepts के लिए I think आसिया की example was also very good कि आपने visually उसको present किया, excellent. अगर आप उसकी applications in real life आपको पता है, आप बता सकते हैं, तो go ahead, do that as well. Then comes the third part कि आपने टाइमिंग अपनी देख ली, आपने अपना कंटेंट देख लिया. अब तीसरा स्टेप आता है कि आपने असेस करना है कि स्टूडेंट को एक्चुअली समझ आ गई है या नहीं आ गई है. लॉट ऑफ दोस टाइम्स वी ऑब्जर्व टीचर्स आस्क, हैव यू अंडरस्टूड, इज दिस क्लियर? तो ये इट्स नॉट अ वेरी इंसाइटफुल क्वेश्चन. इससे ये समझ नहीं आती है कि अगर स्टूडेंट को क्या पार्ट में वो स्ट्रगल कर रहा है या हाउ वेल हैव दे अंडरस्टूड. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन कि वो जो टीचर्स ये पूछते हैं, अच्छा व्हाट शुड आई राइट नेक्स्ट इफ दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, व्हाइट बोर्ड है तो आप कहें कि अच्छा आगे क्या लिखूं, राइट? तो एक जो मॉडल होता है इसके अंदर, दैट्स द सपोर्टिंग वाला मॉडल के आई डू, वी डू एंड यू डू. आर पीपल अवेयर ऑफ इट? I do, we do, you do. For example, अगर आप जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल कोई सम करें, तो एज अ टीचर आपने उनको एक करके दिखा दिया, ठीक है. नेक्स्ट वाले के ऊपर आप उन्हें कहते हैं, अच्छा चलो यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस देन. अच्छा अब मैं आगे क्या लिखूं, व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? मैं इसको डिवाइड करूं, मैं मल्टीप्लाई करूं, व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन? व्हाट इफ आई डिवाइड इट एंड द राइट थिंग वुड बी कि अच्छा नहीं आपने तो मल्टीप्लाई करना है. सो इसको दिस इज द राइट वे कि अगर आपने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करानी है तो आप इन 3 स्टेप्स में कर सकते हैं. यू कैन टेक 3 प्रॉब्लम्स. पहली वाली आपने करके दिखाई, सेकंड वाली में यू डू इट टुगेदर, एंड द थर्ड वन यू आस्क द स्टूडेंट टू डू इट फॉर यू. डज इट मेक सेंस? वेरी नाइस. ये बहुत एसेंस है आपके, ये जो आप बता रही हैं, ये यहाँ पर आके बहुत कुछ खराब करते हैं लोग जी. बिकॉज हम हाँ, मुझे लगता है कि ये असेसमेंट बड़ी की होती है. बिकॉज अगर तो स्टूडेंट को एक्चुअली अभी भी कोई गैप होगा, कंफ्यूजन होगी ना, वो यहाँ इन 3 क्वेश्चंस में से निकल आती है बाहर. अच्छा, सो या विनेश प्लीज गो अहेड, यू वांट टू से समथिंग? मैं ऐड करूंगी कि और स्पेशली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो मिस्टेक करते हुए फिर वो अफ्रेड नहीं होते, और उन्हें पता होता है कि टीचर जो हैं वो मुझे इस खुद करने देंगी या मेरी मिस्टेक पकड़ेंगी तो प्यार से समझाएंगी. और जैसे ये वी डू जब हम कहते हैं ना बच्चों को, बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं. और फिर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने मिस्टेक किया तो अब हम इसको ठीक करते हैं. तो उनको इतनी वो फील होता है कि ये उन्होंने किया काम, हालांकि साथ टीचर कर रहा होता है. तो बड़ी ऑनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और नेक्स्ट टाइम मतलब मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा करें. या बिल्कुल ऐसे ही है. सो एंड देन द थर्ड थिंग इज कि आपने यू डू के अंदर भी अगर आपने एक सिंपलर प्रॉब्लम दी है क्लास में, तो यू मस्ट गिव देम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. मैथमेटिक्स के अंदर विदाउट प्रैक्टिस कुछ अचीव नहीं होता. यू नो, देयर इज अ टेंडेंसी टू मेक सिली मिस्टेक्स, यानी दे वर नॉट कंसेप्चुअल एरर्स, कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं. टाइमिंग की मतलब एक स्पीड का मसला होता है कि यू नो सम चिल्ड्रन दे नीड टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर दे डेवलप दैट स्पीड. तो आपकी क्लास में जो भी असेसमेंट है उसके बाद यू मस्ट गिव प्रैक्टिस शीट्स, एंड दैट विल रियली हेल्प देम टू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस कि अच्छा आई रियली नो दिस, है ना. और नेचुरली भी यही होता है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, इन द क्लास वी फील दैट वी हैव अंडरस्टूड, बट आफ्टर द क्लास व्हेन दे डू द प्रैक्टिस शीट, मे बी आफ्टर अ डे, and if they have forgotten something, so they can then go back to the recording, see it, and you know complete the practice work. Without practice work, again my own sense is कि जो real change student में आना चाहिए ना after taking this help, वो नहीं आता maths में especially. So if you are thinking about the challenge कि you know how do we create all of this practice for each student that we are working with, you don't have to do that because the rest of the world has done it for you. That's the good news.
तो आप अगर बहुत अच्छी सी प्रॉम्प्ट सीख लें ChatGPT की, आप उनसे जनरेट करा सकती हैं क्वेश्चंस. आप जो है वो जो टेक्स्ट बुक है स्कूल ने प्रोवाइड की हुई है, यू कैन यूज दैट. और अगेन यू कैन गो बैक टू education.com. बाकी और साइट्स हैं, बहुत ढेर जगह हैं अब तो प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशली फॉर स्कूल लेवल चिल्ड्रन. अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो देन यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल आउट देयर. इट्स अ मैं भी मैटर ऑफ कुछ ऐड करूँ. जी जनाब, जरूर. यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी शीट आप वहां से उठाएं उसको पहले एक दफा खुद सॉल्व कर लें. कभी भी उस शीट को एज इट इज शेयर ना करें बच्चों से, क्योंकि आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो आपकी उसके अकॉर्डिंगली वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि नहीं है, उसमें से कुछ ना कुछ निकल ही आता है. प्लीज उसको पहले खुद करें, फिर बच्चों को करवाएं. Excellent. चाहे आप एक्सपर्ट. Yes, I completely agree. I think this is absolutely important, and you can actually even say कि अच्छा, you know, you only need to do question 3, 4, 5 from this. ठीक है. And one other tip कि आप students की जो एग्जामिनेशन स्किल्स होती हैं, आप उसको साथ साथ बिल्ड करें. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द चाइल्ड इज डूइंग दीज प्रैक्टिस शीट्स, जस्ट टेल देम कि अच्छा, यू नो, यू हैव टू नोट डाउन योर स्टार्ट एंड एंड टाइम एज यू आर डूइंग दिस शीट. Don't wait for exams to start and then say that, you know, you're taking too long to prepare. You can just do this as part of your regular class, that all right, wow, when we were doing this sum together, we took like 5 minutes. Let's see how soon can we do it next time in our next class. Till then, you do the practice and note down your time also. So it will generally inculcate that habit that, you know, you have to time your attempts and you have to actually develop that speed also. That helps. Again, personalize your communication here, and if you find that the student is actually submitting their work regularly, you must appreciate the hard work that they are doing. You must appreciate it. Without it, you know, you'll not be able to motivate the students. And then you have to also understand, you know, what is it that motivates the student to work hard. Is it some kind of a career goal that they have? Is it just the marks? Is it something else that the student is working towards? So you have to actually have those bits of conversations. This is not a half an hour conversation in one lesson, but maybe, you know, tidbits. 2 minute kahin pe laga liye, 2 minute aur acha, you know, so how did you feel when you got full marks in your test? So yeah, you have done really well. Ye wala question actually hard tha. We will spend more time in practice next time. तो जो तरीका आपको मुनासिब लगता है, बट डू मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटिंग योर स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड. देन अगर लर्निंग का प्लान बना रहे हैं उनके लिए फॉर अ मंथ कि अच्छा, यू नो, व्हाट शुड वी एम फॉर इन दिस मंथ, इन्वॉल्व द स्टूडेंट. उनसे पूछें, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि चिल्ड्रन हैव देयर ओन प्लान्स कि अच्छा, यू नो, सम इवेंट इज कमिंग अप इन द फैमिली, आई वोंट बी एबल टू स्टडी सो मच नेक्स्ट वीक, तो व्हाई डोंट वी प्लान मोर आवर्स इन द वीक आफ्टर. So ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, but they actually create an experience in which the person wants to continue their engagement with you. They don't want to just end the class and say कि जी, oh, I've had enough with this teacher. ठीक है ना. तो ये experience को ये distinguish करेंगी. Preferences जो मैंने आपके साथ share किए, there was khanacademy.org. अच्छा, again, if you're teaching very specific curriculums, IB अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, कुछ और पढ़ाना चाहते हैं, IB has a very specific teacher training program certification. The link is given here. I'll request Bilal कि वो after the session he should share this presentation with you on our WhatsApp group. अगर आपने Google searches specific करनी है तो you can note down this format, because if you want to find specific content on a site, this is what you need to do. आप site colon का tag ये fix रखेंगे. इसके आगे वाला पार्ट जो है, दिस इज द एक्चुअल साइट जिसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि अच्छा, मैंने कुछ सर्च करना है, education.com पे सर्च करना है. व्हाट डू आई वांट टू सर्च फॉर? मैथ्स ग्रेड 5. आई कुड एक्चुअली राइट समथिंग एल्स आल्सो हियर, एनीथिंग दैट आई लाइक. और अगर मैं चाहती हूँ कि अच्छा, education.com से ही मुझे रिजल्ट्स चाहिए, तो आई विल यूज दिस साइट कोलन. इज दिस, हैव अदर पीपल यूज्ड इट लाइक दिस? गूगल सर्चेस किसी ने ऐसे यूज किए हैं? And Aisha Fahad has also mentioned k5learning.com. So sites betahasha hain, lot of them. Please use them to your advantage so that you are able to create that experience and that difference for the student jiske saath aap connected hain. Then this is ChatGPT. I use ChatGPT more than other tools out there, but it's
absolutely your own call, whatever you're more comfortable with. अच्छा, द सेकेंड पार्ट जो सबसे पहली स्टेटमेंट में था, दैट वाज कि एक तो हमने स्किल की बात की थी, तो अभी तक जितना हमने देखा दैट वाज मोर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट नॉलेज एंड योर एंगेजमेंट, एंड लेट्स एक्चुअली टेक अ डीपर डाइव इनटू दिस कनेक्शन पार्ट एज वेल. सो हाउ डू वी डेवलप आवर कनेक्शन विद द स्टूडेंट? हाउ डू वी डेवलप दैट कनेक्शन? स्किल होगा तो कनेक्शन होगा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है. कुछ आता होगा तो कनेक्शन होगा. जी. स्किल इज अ मस्ट हैव, उसके बगैर कनेक्शन नहीं हो सकता. एंड एट द सेम टाइम कनेक्शन के बगैर स्किल भी बहुत यूजफुल नहीं रहती, बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट रियली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड टू डू वेल. दैट इज व्हाई सम पीपल हु आर. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये कौन सा उस्ताद होता है जो सिर्फ स्किल पे काम करना जो है, क्यों, क्या एक डेविएशन है कि लोग स्किल के ऊपर काम करते करते कनेक्शन से हट जाते हैं? हालांकि नहीं, ये मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या, कौन सी चीज है जो आपको स्किल पर ले जाती है और आप कहते हो आप स्किल सीखो तो कनेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये कोई टाइम होता है या कोई चीज होती है जो डेविएट कराती है उस्ताद को? जस्ट अ क्वेश्चन. I think everyone has. Somebody else wants to say something? कोई और बोला था अभी शायद? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ. अच्छा, so मेरा I think my own observation is कि real life में when I look at the corporate world, when I look at teachers, lots of them, तो मुझे ये समझ आती है people have, जिनको हम people skills, soft skills कहते हैं, वो हर किसी के अंदर different होती हैं. Some people have very strong people skills. They have that emotional intelligence. They are able to observe more. They're more sensitive. They have more empathy. So that is what creates this difference. मेरा ये ख्याल है. So it's a skill that can be acquired, provided someone wants to acquire it, provided they understand that they need to. And if I look at that pyramid, जो लोगों की करियर की पिरामिड होती है या टाइम लाइन के ऊपर उनकी करियर ग्रोथ होती है, so anyone who is not able to communicate well, they don't go at the top, because you see, to work as a leader, to be able to influence other people, you have to be able to express yourself. You have to be able to understand what the other party wants. वो other party student है या parent है या किसी organization में employee है, वो कोई भी है. If you're not able to understand their need, if you're not able to adapt and respond, तो फिर वो two-way communication नहीं हो पाती. So basically the point is that successful teachers, they don't just teach a topic. They have to teach a student. And students remember how they felt way more than what they were taught. पहली चीज तो कंफर्ट उनको याद रहता है कि हाँ, इस टीचर के साथ आई एम कंफर्टेबल, ये उन्हें याद रहेगा, राइट? पढ़ाई स्टूडेंट के लिए सेकेंडरी होती है, बिकॉज इफ दिस पर्सन इज टेंस, तो वो उनका फोकस समझने पे नहीं होगा. द फोकस विल बी, हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई डोंट गेट स्कोल्डेड बाय दिस पर्सन. तो lot of students who are differently abled, they are not able to ask questions in class. Why? Because if the teacher says कि जी I have just explained it, why are you asking again? So it embarrasses the child. इसका मतलब है आयशा कि हमें जो पार्ट आप इस वक्त बता रही हैं, ये कनेक्शन वाला पार्ट जो है, इस पर बहुत सारी वर्कशॉप्स और बहुत सारा जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये वो एक पार्ट है जो बहुत कुछ होने में नहीं होता. करेक्ट. एंड द बेस्ट टीचर्स आर दोज, हमने प्लेटफॉर्म पे भी यही देखा है, पीपल हु आर एक्चुअली जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट, देयर परफॉर्मेंस, और वो थोड़ा सा एंगेज रहते हैं, तो उनके साथ लॉन्ग टर्म उनको रेफरल्स बहुत मिलते हैं. दे आर एबल टू अर्न वेल ऑन द प्लेटफॉर्म. They get that repeat engagement also. तो lot of things happen. तो वहाँ पे टीचर्स की अपनी एक इंटेग्रिटी बहुत मैटर कर रही होती है, बिकॉज जाहिर है somebody is paying for that time, so you can't spend a lot of time talking about other stuff, right? So that's not right, because parent hired you to teach mathematics,
and we can't be spending 50% of the time talking about other stuff. तो ये balance is a very delicate balance also. लेकिन एट द सेम टाइम आपने बच्चे को पढ़ाना है, उसको साथ लेके चलना है, तो उसके साथ ये थोड़ा थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि अच्छा लेट्स मेक अ प्लान फॉर दिस वीक, लेट्स मेक अ प्लान फॉर अ मंथ. तो आप 5 मिनट 7 मिनट उस पर लगाएं. टेक द चाइल्ड्स इनपुट, दैट हेल्प्स. और फिर ये बाकी चीजें तो छोटी हैं कि अच्छा आप क्लैरिटी अगर लेकर आ रहे हैं, यू पुटिंग सम थॉट इनटू लेसन प्लानिंग कि आपकी डाइजेस्टेबल बाइट साइज्ड आपने कंटेंट उसको देना है, आपने रियल वर्ल्ड मेटाफर्स यूज करने हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन उसको बतानी है, वो आपको मिल जाएगी. आई एम टेलिंग यू, रिसोर्सेज आर आउट देयर. आप उनको पिक करते हैं और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जब बताते हैं तो दिस वर्क्स रियली वेल. और ये वाली चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू बिल्ड दैट ट्रस्ट टू क्रिएट अ सेफ लर्निंग स्पेस. कुछ बच्चों को फास्ट पेस पे बात समझ में नहीं आती है, तो समटाइम्स टीचर विल just go on solving that problem. Okay, take this number down, divide it, at times itne is this much, this, and they get done with in just few seconds. So this child is not able to do all of that mental math quickly. They are left behind. Any questions so far? फिर this is one thing also, maths के अंदर ये काफी मैटर करती है, because again this Gen Z is different. आप इन बच्चों के साथ वैसे डील नहीं कर सकते जैसे 10 साल पहले के बच्चों के साथ डील करते थे. टुडे दे क्वेश्चन के जी व्हाई शुड वी डू दिस, वेयर इज दिस यूज, ये लीनियर अलजेब्रा, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की कहाँ जाके यूज होंगी, व्हाई आर वी इवन स्टडीइंग दिस. तो इफ यू कैन स्पेंड सम टाइम टू डिग आउट दैट व्हाई, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. your own energy, your own enthusiasm and commitment, वो सब मैटर कर रहा होता है. बिकॉज अगर टीचर ही इतना लो ऑन एनर्जी है, टीचर ही इतना अनहैप्पी है, तो वो दैट काइंड ऑफ अफेक्ट्स द स्टूडेंट ऑल्सो. तो अगर आप एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, आप खुश हैं, द टोन इज लाइक गुड, आवाज उसको ठीक आ रही है, सुनाई दे रहा है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट contributes to creating an experience that they want to repeat. I think this is almost the last slide. So basically success through relationships जो है, इसके concept के अंदर अगर आप देखें तो you talk about your availability, कि अगर आप उनकी बात सुन रहे हैं, messages को respond कर रहे हैं, excellent. They will always think, okay, I can go back to this teacher whenever I'm stuck. Feedback loops are important. अगर आप स्टूडेंट परफॉर्मेंस देख रहे हैं और उसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशंस हैं कि अच्छा वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, या अगर पेरेंट्स एंगेज्ड हैं तो यू वांट टू टेल पेरेंट्स पीरियडिकली हाउ वेल देयर चाइल्ड इज डूइंग, सो दैट फीडबैक लूप मेंटेन्स दैट रिलेशनशिप, इट स्ट्रेंथन्स दैट बॉन्ड. ठीक है ना. सिमिलरली अगर कोई माइलस्टोन्स हैं तो उनको आप रिकग्नाइज करें, अगेन सेलिब्रेट इट, अप्रिशिएट, टेल द चाइल्ड they've done really really well. So keeping them involved, engaged, looking forward to next milestones, next achievements, all of this matters. So talking about returns and rewards, so what we have seen is in the year 2024, the minimum fee stated on the platform was like $5 an hour for foreign students, because really they require that extra knowledge, that attention, that level of sophistication in teachers. So the rate was set to a floor of $5 per hour. We said इससे कम पे नहीं होना चाहिए. We are considering revising that rate for next year. The number is not decided yet, but this is a simple math that tells you that if you work just to deliver 8 lessons per month, एक normal इंसान 8 घंटे दिन में काम करते हैं, right? But अगर आप 8 hours per month कर रहे हो और इस रेट के ऊपर कर रहे हो, तो this is what you earn. It's a good number, it's a healthy number. आप थोड़ा सा रेट इम्प्रूव कर लें, अगर आप मिडिल स्कूल एंड अबव को कर रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली अचीव दिस नंबर फ्रॉम वन स्टूडेंट वेरी वेरी इजीली. इट्स डूएबल प्रोवाइडेड, आई मीन, you have worked on your language skills, you have worked on your core math skill, right? You're willing to spend some time to go through the lessons जो कि TutorBees Academy वाले सेक्शन में ब्लॉग के अंदर हैं. Take those assessments. तो बात वही है कि we all like to think that we want to earn more, but for a person who is making an average income,
आप मुझे बताएं कि इफ द स्किल्स ऑफ दैट पर्सन आर एवरेज, तो इनकम कैसे अबव एवरेज होगी? ठीक बात है ना? If my skills are average, I get to earn an average income. If I want to achieve high income, so then it means that I have to upskill. I have to be better than the rest of the world. So Shagufta has a question here. Ma'am, these techniques would work in an ideal scenario where all students are listening. Still, Here I assume different ability students are there in class. But what about a class, especially primary, where some are disturbing the class, some don't want to study and just play, and they're not following instructions together, work well in the class, but others would just waste their time and disturb others. Gee, that is true. And I think iske upar I would love to hear from other people in the audience also. Thinking class management is a particular topic. जो मेरी अभी की कॉन्वर्सेशन थी, दिस वाज सेंटर्ड टुवर्ड्स टीचिंग ऑनलाइन, अर्निंग वेल ऑन ट्यूटरबेस. तो अब हम उस टॉपिक से हट के अगर क्लास मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, तो व्हाट आई हैव सीन ऑनलाइन इज, आई विल शेयर माय थॉट्स एंड देन इफ समवन एल्स वांट्स टू चिप इन, प्लीज डू. कि कभी कभार टीचर्स होते हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज कराते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा आज हमने एक टॉपिक करना है, तो ये क्लास को 2-2, 3-3 के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके एंड देन यू डू समथिंग. अच्छा, जो ग्रुप अच्छा करेगा तो आज उनके लिए जो है वो सारे ऑल स्टार्स होंगे एंड दिस दैट. तो यू हैव टू बी क्रिएटिव ओवर देयर एंड मैनेज द क्लास, बिकॉज स्कोल्डिंग डज नॉट वर्क. एटलीस्ट माई थॉट इज वेरी क्लियर कि लॉट ऑफ टाइम्स वी ट्राई टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन बाय अथॉरिटी, तो इट वर्क्स, but again it doesn't build that rapport, it doesn't build that inspiration in students. We should have a detailed session on that as well. Thank you very much for highlighting this, Shagufta. We will try ke hum iski best practices for class management, we should put them together and share them with the group. Thank you for the suggestion, I really appreciate this. So really we would like to request folks to leave their reviews, and if there are any questions please let me know. आयशा, ये जो शगुफ्ता ने लिखा है ना, ये क्लास का, कि क्लास से कैसे कनेक्ट होगा, आपने आंसर किया इसको, लेकिन मुझे लगता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वहां पर आपका जो बेसिक स्किल है वो आपका रिलेशनशिप वाला स्किल काम करता है. पहले आपका उनके साथ रिलेशनशिप होगा, ये कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर आप उन सबको इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद आप काम करा सकते हैं. सो यू नीड टू कनेक्ट. अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो आप उनको काम नहीं करवा सकते डायरेक्टली. अगर आपके पास एक स्टूडेंट है, जैसे आप ट्यूटरिंग कर रहे हैं, आप टीच कर रहे हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट को, तो वहां एक आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप उससे बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं, आप उससे एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपके पास एक चीज बनती है जिसके ऊपर आप फर्दर प्लान करते हैं कि अब मैंने ये पूछना है. लेकिन जब आप क्लास को डील कर रहे होते हैं तो वो वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सब बच्चे उस एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है जो कि रिलेशनशिप है. जी बिल्कुल है. हमने so basically I mean I've had the opportunity के as part of the TutorBees team हम कुछ tier 1 schools के अंदर हम गए to deliver sessions. वहाँ पे एक different culture, different environment हमने देखी. We went to government schools, वहाँ पे बिल्कुल different environment हमने देखी. तो there are classes जहाँ पे teacher says sit down, खामोश. And there's that use of authority और discipline जिसके अंदर actually I can imagine के वो वाला comfort level नहीं होगा. ठीक है ना? तो अब डिपेंड करता है कि अब ज़ाहिर है she is talking about primary, तो वहाँ पे when the age is young तो थोड़ा सा difficult होगा. ज़ाहिर है हर बच्चा उस तरह से करके structured नहीं होता. तो आई थिंक इट वुड बी बेस्ट कि इसका सेशन हम एक सेपरेटली प्लान करें जिसमें चैलेंजेस और डिफरेंट लेवल्स, बिकॉज ज़ाहिर है द वे यू वुड डील विद मे बी एन ओ लेवल एज ग्रुप, वो तरीका मुख्तलिफ होगा प्राइमरी के साथ डील करने से. तो एनी अदर क्वेश्चंस जी? सो दीज वर जस्ट स्क्रीनशॉट्स. ये मैंने खान अकेडमी पे जो 5th ग्रेड वाली सर्च आपको सैम्पल करके दिखाई थी, उसके ऊपर ये आपको इस तरह से ये ऑप्शन देता है. एक्सप्लोर का बटन मैंने क्लिक किया तो देखें ये सारा ग्रेड वाइज सॉर्ट होके आता है.
high school, science, economics, other subjects, lot of stuff is out there. Make good use of it. It's all well organized. और ये example भी मैंने आपके लिए निकाला था कि अच्छा एक unit test है तो आप actually उसके questions को इतने time के अंदर attempt वगैरह भी कर सकते हैं. So you can use these resources to your advantage. Any other comments, questions? अस्सलाम वालेकुम. मैं भी थोड़ा सा ऐड करूंगी खान एकेडमी के उस पे. जब इफ यू आर गोइंग टू ट्यूटर अ न्यू स्टूडेंट तो ज़ाहिर पहले सेशन में हम असेस कर होते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, तो उसके लिए भी ना खान एकेडमी के असेसमेंट टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं, तो यू कैन यूज. वालेकुम अस्सलाम जी. श्योर. ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन. जी आसिया, ये जो ब्राउजिंग हम करते हैं ना ये टेस्ट वगैरह ढूंढने के लिए, जैसे तो साइट्स आपने बताई हैं, इसका एक और भी बहुत अच्छा सा तरीका है कि अगर आप अपना जो क्वेश्चन है, आप जो चैट जीपीटी है या आप बस एआई का कोई भी टूल आप को पायलट यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे कि ये मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए और मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो आपको वो साइट्स बता देगा. आप उन साइट्स पे चले जाएं, वो टेस्ट भी बना सकता है लेकिन आपको वो एग्जैक्ट साइट भी दे देगा. जैसे मैंने यहाँ फोरम पे आपसे पूछा कि अगर हमें केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर बनाने हैं, एनिमेशन बनानी है, और मैंने ये क्वेश्चन उससे किया और मैंने कहा कि मुझे ये इस तरह स्ट्रक्चर्स के लिए फ्री अगर कोई सॉफ्टवेयर मिल सकता है, तो उसने मुझे गाइड किया कि कैम ड्रॉ पे चले जाएं फ्री. मैंने उसका पूरा डाउनलोडिंग का उसने मुझे बताया, और कैम ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है केमिस्ट्री में जो आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, 3D स्ट्रक्चर्स बनाना, उनकी एनिमेशंस सब आपको प्रोवाइड करता है. सो एक इजी ब्राउजिंग जो है आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं अगर आपको क्लियरली क्वेश्चन करने आते हैं तो. Yeah, that's also again that's also an upskilling matter ना. Lot of people they haven't tried it, या अगर उनकी prompts वो करते भी हैं वो बहुत बेसिक होती हैं तो उनको actually useful output नहीं मिलती. इस पे भी वर्कशॉप होनी चाहिए. There are so many workshops and courses on prompt engineering right now. Yeah. Prompt It's a engineering matter of helping people see, Aisha, कि इनका फायदा actually होता है. Lot of people think कि अच्छा मुझे तो आती है, वो डिफरेंस ही नहीं इमेजिन कर सकते कि एक पुअरली प्रॉम्प्ट करने वाली आउटपुट के अंदर और एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट की आउटपुट में कितना ज्यादा फर्क होता है. बिल्कुल, इट सेम लाइक गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऐसे ही होता है बिल्कुल हमारे साथ. अगर हम जो इनपुट यूजर के जो प्रॉम्प्ट डालें और उसके बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है प्रॉम्प्ट अच्छा बनाना आना और ना आना. दिस इज Exactly. Yeah, so Binish, Fawzia, Kulsoom, Shugufta, Aisha, everybody who's there, thank you very much for your time, and please don't forget to give the review जो बिलाल ने गाइड किया था. तो inshallah see you next week with some other presenter, some other topic. Thank you, Aisha. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.